PPT before you? Are you having the presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Prasad, just let me know whether all students have joined or not. So we can start with the lecture. Hello? Start कर सकते हैं. Okay, fine. Okay, guys, in the last week, we have started with the trade theories. And in this week, we are going to continue with the trade theories. In the last week also, we have done one very basic trade theory, which is based on the concept of absolute advantage. Let me revise quickly about absolute advantage. So for example, if there are two friends, one is very good at the engineering and he can handle very wisely the production department, and if the other is very good at marketing, the third friend is too good at financial management. So guys, instead of developing three different businesses, they can be greatly successful if they come together and if they start their own business. क्योंकि अगर जो प्रोडक्शन इंजीनियर है उसने अलग बिजनेस स्टार्ट किया, सो he may not manage the marketing department or finance department very efficiently. Same thing will be related to the marketing guy or the finance guy. Instead of that, if they come together and start their own business, definitely they can conquer the world. Why? Because they are setting off, or they are having the complementary, uh, what you can say, the complementary, uh, the features in their working style. In fact, if you talk into the economical phenomena, they have absolute advantage of skill, as one is having financial knowledge, other is having production knowledge, the third one is having the marketing knowledge. But today we are not talking about absolute advantage. Today we are going to complete the phenomena which is termed as a comparative advantage. Comparative advantage, what do you mean by comparative advantage? So now let's go back to the countries. Okay, why comparative advantage, not the absolute advantage? First one we can discuss. अगर हम रियलिटी की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द रियल वर्ल्ड, मैंने लास्ट वीक में ही आपको बोला था कि एब्सोल्यूट एडवांटेज इज समथिंग अबाउट द वेरी imaginary world. In reality, no country will have the absolute advantage over the other country. मतलब जैसे इंडिया is having the spices as a main exporting product, simultaneously we are also exporting the clothes also. तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्पाइसेस में हमारा एब्सोल्यूट एडवांटेज है ऑन द अदर कंट्री. No, we have the good competitors for the export of spices also, but simultaneously we are exporting the cloth, we are exporting so many things. So no country in reality will have absolute advantage, but definitely we will have the relative advantage. Relative advantage का मतलब क्या है? In some cases, for the some product, a country will have a very good efficiency, but same country will have little bit low efficiency due to many factors for the other products. So definitely for each and every country, their efficiency will matter. जैसे कहा जाए कि if we look at the IT sector, we are very good at testing the modules and blah 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 blah. लेकिन we are not good at the inventing the new products. So in some cases we are having the very good advantage, at the other places we are not having so much of that advantage. So this concept is called as relative advantage.
एंड ये जो रिलेटिविटी है एफिशिएंसी की हर एक कंट्री में, ये रिलेटिविटी होगी हर एक कंट्री में। नाउ आप सोचो कि अरे यार, नो कंट्री इज हैविंग द एब्सोल्यूट एडवांटेज, every country will have its own relative advantages. In this case, how country can make the treaties? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हो तभी आप दोनों कंट्री को प्रॉफिट होगा। अगर आप ये कहोगे कि नो नो नो, आई विल लुक आफ्टर माई सेल्फ, यू शुड लुक आफ्टर योर कंट्री, हमेशा याद रखो इन अ लॉन्ग टर्म, हाँ शॉर्ट टर्म के लिए कभी कभी करना पड़ता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योरिटी के लिए कभी कभी आत्मनिर्भर होना पड़ता ही है, बट इन द लॉन्ग टर्म इफ वी आर लिविंग इन द ग्लोबल एनवायरमेंट we have to make the treaties with other countries. So ऐसी treaties कैसे बनाई जाए? Because we are not having any absolute advantage in reality, we are having the comparative advantage. जैसे एक घिसा पिटा एग्जाम्पल है इकोनॉमिक्स में कि इंडिया is a labor oriented country. We are having a relatively high advantage over laborers, but we do not have any advantage or probably lower advantage in the availability of funds, matlab capital. Same way, if you look at the America is having technological advantage, capital advantage, but they are having probably low number of laborers. So both countries are good at some, not that much good at other factor, but still both countries are having both factors. तो ऐसे कंट्रीज एक साथ आकर कैसे एग्रीमेंट्स बनाए, ये जब सवाल आया तो डेविड रिकार्डो, अगेन डेविड रिकार्डो इज ऑल्सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जैसे एडम स्मिथ का भाई समझ लो आप, थोड़ा छोटा भाई समझ लो। तो डेविड रिकार्डो comes with the solution and he put forward a new theory which is called comparative cost advantage. अभी आपको समझ में आया होगा कि मैंने डेविड रिकार्डो को छोटा भाई क्यों बोला एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ has put forward a theory for the first time in the history and after that रिकार्डो ने अपनी theory brief की, that is the comparative cost advantage theory. Now let's look at the actual working of the cost advantage theory, how it's working. The way we have seen the cost, the absolute cost advantage, same यहाँ पे भी एक हम एग्जांपल लेंगे। आपको याद होगा कि पहले के एग्जांपल में दो कंट्रीज लिए थे ए एंड बी, आज मैंने उसको थोड़ा नाम दिया अच्छा वाला। तो दो कंट्री कौन से है, इंग्लैंड है और पुर्तगाल है, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। पिछले पहली बार कुछ थ्योरी सीख रहे थे इसलिए मैंने उनको नाम नहीं दिया था, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई ऐसा बोला था। अभी नाउ वी आर गोइंग टू लिटिल बिट वाइजर, तो मैंने यहाँ पे एक नाम भी दे दिया। कौन से यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वाइन का एक यूनिट और क्लोथ का 1 यूनिट। स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। नाउ बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड का डेटा क्या कहता है, आपके सबके सामने पीपीटी है ना बच्चों, आर यू फॉलोइंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड रिक्वायर्स 120 men to manufacture 1 unit of wine and 100 men to manufacture 1 unit of cloth. मतलब अगर if we compare in efficiency between wine and cloth, we can easily say कि England should stick to cloth. क्यों? क्योंकि wine is taking 120 men to manufacture 1 unit, इससे अच्छा है cloth 100 men का labor hours में manufacture रही है। But here we are not here about to discuss only the efficiency of England. We are going to made a deal with the Portugal. तो पोर्तुगाल का डेटा भी हमें देखना पड़ेगा। What is about Portugal? Portugal is manufacturing 1 unit of wine with 80 men labor hours. मतलब England is taking 120 while Portugal is taking only 80. And what about cloth? Portugal is again manufacturing 1 unit of cloth
in 90 men's labor hours. मतलब आपने देखा, if we compare the efficiency of England with the Portugal in both case of products, which country is better बच्चों? इंग्लैंड ना इंग्लैंड फिर से पोर्तुगाल बता रहे हैं पोर्तुगाल एग्जैक्टली पोर्तुगाल पोर्तुगाल। वाइन का एक यूनिट बनाना है तो इंग्लैंड इज टेकिंग 120 लेबर आवर्स, 120 घंटे लग रहे हैं उनको। पोर्तुगाल कितने घंटे में बना रहा है? 80 घंटे में। 80 घंटे। हाँ, इंग्लैंड क्लॉथ बनाना है तो 100 घंटे ले रहा है, पोर्तुगाल बना रहा है तो सिर्फ 90 घंटे ले रहा है। तो अच्छा काम कौन कर रहा है, इंग्लैंड या पोर्तुगाल? ऐसा मेरा सवाल है। डेफिनेटली पोर्तुगाल। पोर्तुगाल। बट अभी एक प्रॉब्लम आ गई ना, पिछले थ्योरी में एक प्रोडक्ट के लिए एक कंट्री अच्छी थी, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरी कंट्री अच्छी थी। यहाँ क्या हो गया भाई, दोनों प्रोडक्ट के लिए एक ही कंट्री अच्छी है। इसीलिए हमें यहाँ पे वी कैन नॉट अप्लाई द थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। लेकिन फिर भी दोनों का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें डील करना पड़ेगा। दोनों का प्रॉफिट बढ़ाना है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे, अभी देखो। नाउ वी विल कंपेयर द कॉस्ट फॉर इंग्लैंड विद द कॉस्ट फॉर पोर्तुगाल। चलो देखो कॉस्ट फॉर इंग्लैंड कैसी है। वाइन की कॉस्ट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू पोर्तुगाल? 120 बाय 80, डेफिनेटली मोर देन 1 है। क्लॉथ की भी 100 बाय 90, डेफिनेटली मोर देन पोर्तुगाल। सेम थिंग आई हैव रिटर्न इन जस्ट मैथमेटिकल टर्म। पोर्तुगाल की कॉस्ट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लैंड? उल्टा हो जाएगा। वाइन के लिए 80 बाय 120 मतलब लेस देन 1 आ गई। क्लॉथ के कितनी आ गई? 90 बाय 100, अगेन लेस देन 1। तो यहाँ पर आराम से हमें पता चल रहा है, टेबल में भी, पहले वाले टेबल में भी पता चला कि पोर्तुगाल बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो अभी डील कैसे बनाएं? हाउ बोथ कंट्रीज कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट? भाई पोर्तुगाल तो अच्छा वाला बंदा है। नाउ व्हाट वी विल लुक फॉर पोर्तुगाल, कि जहां पे पोर्तुगाल सबसे बढ़िया काम कर रहा है, सबसे बढ़िया, वो चीज पोर्तुगाल इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करेगा। तो सबसे बढ़िया काम कौन सा हो रहा है एज कंपेयर टू इंग्लैंड? वाइन का। वाइन पोर्तुगाल सबसे कम कॉस्ट में बना रहा है। आपके सामने अगर कैलकुलेटर हो तो कैलकुलेट कर लेना। 80 बाय 120 कितना हो गया? 80 बाय 120 कितना आया? 2/3 मतलब 0.67। और क्लॉथ पोर्तुगाल बना रहा है 90 बाय 100 मतलब 0.90। तो सबसे कम प्राइस कौन सी है? डेफिनेटली 0.67। तो पोर्तुगाल क्या करेगा? पोर्तुगाल इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करेगा एंड इट विल हैव द हाईएस्ट एडवांटेज, क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को प्रोडक्शन के लिए ही 100 लग रहे, 120 लग रहे वाइन, and Portugal is manufacturing at 80 and they will sell the wine in England at 120। इंग्लैंड का कुछ नुकसान हुआ? इंग्लैंड को तो आदत है 120 को वाइन का एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने की, लेकिन फायदा किसको हुआ? डेफिनेटली पोर्तुगाल को हुआ। एंड दे कैन रीप अ हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स थ्रू selling Hello, the wine to England. Yes, ma'am. Can you please explain it once again? sure. Which one? Slide number 3, ये वाली? Yes. हाँ. हाँ, अभी आप देखिए कि इंग्लैंड 120 यूनिट 120 आवर्स में वाइन बना रहा है, पोर्तुगाल बना रहा है 80 आवर्स में। बराबर, आवर्स का मतलब कॉस्ट ही है, उतना पैसा आपको देना पड़ता है लेबर को। Yes. तो इंग्लैंड की कॉस्ट क्या आ गई? 120 बाय 80। सही बात है। क्लॉथ की Yes. इंग्लैंड की कॉस्ट क्या आ गई? 100 बाय 90। मतलब 100 दोनों by केस में 90. ग्रेटर, हाँ दोनों केस में ग्रेटर देन 1 हो गए। Yes.
मतलब इंग्लैंड इज नॉट हैविंग एनी एडवांटेज ओवर पोर्तुगाल. क्यों? क्योंकि पोर्तुगाल की वाइन की कॉस्ट कितनी है? 80/120. 80. सिंपल सा मैथ्स है भाई. इट्स हाँ 0.66, yes राइट? और क्लॉथ की yes कॉस्ट क्या आ गई? 90/100. 90 by मतलब 100. 0.9. 0.9 yes. मतलब किसी भी हाल में इंग्लैंड इज नॉट एट एडवांटेज. हु इज इट एट एडवांटेज? पोर्तुगाल. Portugal बट yes. यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आया कि ओनली वन कंट्री इज हैविंग एडवांटेज फॉर बोथ ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आपको याद होगा तो लास्ट जो हमने थ्योरी पढ़ी एब्सोल्यूट की, तो वहां पे ए कंट्री एक्स में बहुत अच्छा कर रही थी और बी कंट्री वाई में बहुत अच्छा कर रही थी, तो झगड़ा हुआ ही नहीं. यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक ही कंट्री दोनों में अच्छा कर रही है. तो हम क्या करेंगे? एक कंट्री जिस प्रोडक्ट में सबसे बढ़िया काम कर, मतलब यहाँ पे पोर्तुगाल इज डूइंग अ Wine रियली गुड वर्क इन केस ऑफ वाइन. 0.67 कॉस्ट है उनकी. दे विल yes एक्सपोर्ट इट टू द इंग्लैंड. सही बात है. एंड दे विल हैव अ yes. हाई अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. बट डील है ना, तो इंग्लैंड को भी कुछ मिलना चाहिए उसमें. तो पोर्तुगाल का हम देखेंगे ग्रेटेस्ट एडवांटेज, जो हमने देखा कि वाइन की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है एंड दे कैन एक्सपोर्ट इट टू इंग्लैंड. इंग्लैंड में सेल प्राइस ज्यादा मिलेगी एंड पोर्तुगाल विल हैव ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. लेकिन ये डील होने के लिए पोर्तुगाल को भी थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अभी आप देखिए, अगर हम इंग्लैंड के कॉस्ट की बात करें तो इंग्लैंड की लीस्ट कंपैरेटिव डिसएडवांटेज क्या है? 100/90 और 120/90. डेफिनेटली 120/80 इज अ हायर Great कॉस्ट, yes राइट? तो yes sir. लोअर कॉस्ट इंग्लैंड को किस में मिलेगी? क्लॉथ में मिल रही है. Cloth में 100/90 वाली यहाँ पे. yes yes सही बात है. तो पोर्तुगाल विल एक्सपोर्ट द वाइन एंड इंग्लैंड विल एक्सपोर्ट द क्लॉथ. cloth हाँ, पोर्तुगाल विल बी वेरी हैप्पी टू सेल वाइन एट 120 एंड मैन्युफैक्चरिंग एट 80. 40 रुपए का उनका प्रॉफिट है. लेकिन ये profit हो डील रहा होने है. के लिए उनको इंग्लैंड का क्लॉथ 100 में लेना पड़ेगा. मतलब पोर्तुगाल को पता है कि दे कैन मैन्युफैक्चर इनटू 90 फॉर 90, फिर भी उनको 100 में लेना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वाइन में से उनको 40 रुपए का प्रॉफिट चाहिए भाई. yes मतलब डील होने के बाद भी पोर्तुगाल विल हैव 30 20 पर रुपीज ऑफ प्रॉफिट. yes सही बात है. क्यों? yes ऐसा क्यों? बड़ी नाइंसाफी है. नहीं, नाइंसाफी नहीं है. Even though Portugal is having a greatest advantage over the product, England has tried to minimize the losses. वरना क्या होता? वाइन भी महंगी मिलती और क्लॉथ भी महंगा मिलता, और महंगा ज्यादा मिलता. महंगा. क्योंकि वाइन मैन्युफैक्चर ही 120 को हो रही है, उसके ऊपर प्रॉफिट एलिमेंट जाएगा, उसके ऊपर सेलिंग प्राइस जाएगी इंग्लैंड की. इससे अच्छा क्या है? 120 को ही बेच दो. So this is the importance of understanding the trade theories when you are entering into the trade agreement. एक हाथ से मिल रहा है ना, तो एक हाथ से आपको थोड़ा सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा. अभी ऐसी ट्रेड थ्योरीज, और आप अगर देखो ना तो अभी जो एक्चुअल ट्रेड थ्योरीज चलती है वो कभी भी एब्सोल्यूट एडवांटेज की नहीं चलती. जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे चलता है. अभी 60 to 65% जो ट्रेड थ्योरी, जो ट्रेडिंग चलता है, जो बायलैटरल एग्रीमेंट चलता है. बायलैटरल एग्रीमेंट माने दोनों कंट्रीज में चलने वाला बायलैटरल एग्रीमेंट, वो बहुत ज्यादा रिकार्डो के थ्योरी पर ही चलता है. जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन नेट इफेक्ट हमेशा प्रॉफिटेबल ही आना चाहिए. सो एडवांटेजेस ऑफ थ्योरी क्या है? फर्स्ट, जो हम नेचुरल रिसोर्स एग्रीमेंट ना करते तो वी मे हैव एक्सप्लॉइटेड द अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री. मतलब वाइन भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्लॉथ भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी अच्छी नहीं है इंग्लैंड में.
इससे अच्छा है सिर्फ क्लॉथ मैन्युफैक्चर करो, एक्सपोर्ट करो, वाइन लो. Ultimately, collectively, we may save the natural resources and efficient allocation भी हो सकता है. Definitely production cost कम होगी. जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो प्रोडक्ट प्राइसेस भी थोड़ी बहुत अच्छी रह सकती है, अफोर्डेबल रह सकती है. एंड वी कैन हैव द बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड. अगर सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस है तो हमेशा हमेशा प्राइस फ्लक्चुएट रहेगी. बट ड्यू टू एग्रीमेंट्स, ड्यू टू ग्लोबल एग्रीमेंट्स, वी कैन हैव द बैलेंस्ड प्राइस. आपने देखा होगा कि इन 90s, इवन इन 80s, we were we were lacking the access to the technology. बट जैसे WTO में हमने एग्रीमेंट्स किए बहुत सारे, इनफैक्ट जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज देयर व्हेन ही साइंड द न्यूक्लियर पावर डील. आई डू रिमेम्बर आई वाज इन स्कूल. एक महाराष्ट्र में एक बड़ा एक वर्ड था भार नियमन. मतलब 3 घंटे बिजली नहीं, 4 घंटे बिजली नहीं, 5 घंटे बिजली नहीं. बट at that moment when we have signed the nuclear deal with the of course USA during the tenure of honorable prime minister Manmohan Singh and the then president of America George Bush. भारत नियम मान, ये आपने सुना है उसके बाद? कभी सुना उसके बाद? in the month of May we may have to face Bhar Niyaman of 6 hours, 7 hours. And sometimes in villages I really felt very sorry for villagers. 12 घंटे वो बिना बिजली रहते थे. I don't know how they have spent the time. So this is a beauty of agreements and trades. Now अगेन यू विल आस्क मी, मैम ये तो समझ में आया टेक्निकली कि ये एडवांटेज है, वो एडवांटेज है. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ. नाउ आई विल गिव यू वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. द एग्जांपल रिलेट्स टू डू डिफरेंट कंट्रीज जो हम ज्यादा बात नहीं करते. एक है आइलैंड एंड दूसरी है चाइना. आई नो यू आर ऑलरेडी हैविंग lot of to say about the China, but I will ask you, what do you know about the island? कहाँ पे है ये आइलैंड नाम की कंट्री? कुछ आइडिया है आपको? मैम ब्रिटेन के पास है. हाँ, ब्रिटेन के पास बहुत बढ़िया कंट्री है एंड दे आर वेरी फेमस फॉर देयर डेयरी प्रोडक्ट्स. So basically, Ireland is having a comparative advantage on the manufacture of cheese and butter क्योंकि उनका atmosphere is too good for such kind of products. And China is having a comparative advantage in, no need to say, manufacturing the electronics due to its abundance availability of labor at a very cheaper cost. But दोनों कंट्रीज को फायदा कैसे होगा? क्योंकि दोनों मैन्युफैक्चर कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स. बट Ireland is little bit having a great advantage in manufacturing the cheese and butter due to its climate advantage. So manufacture cheese and butter, but China is not having that much of climate advantage as compared to the island. तो दोनों एक दूसरे को क्या मदद कर सकते हैं? अगर चाइना ने इंपोर्ट का जो कोटा है हर एक कंट्री को अलॉट किया हुआ वो निकाल दिया, 100% we can import from Ireland, क्या होगा? Ireland अपने high standard milk products they can sell to China, and in return China can sell their inexpensive electronic gadgets to Irish people. फायदा कैसे हुआ देखो. जहाँ पे बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स आइलैंड में, वहां पे उनको प्राइस नहीं मिलेगा कितना भी मैन्युफैक्चर करो. लेकिन सप्लाई हमेशा ज्यादा है, डिमांड कम है, पॉपुलेशन इज वेरी मच लेस इन आइलैंड, तो प्राइस नहीं मिलेगी. इससे अच्छा चाइना में अगर इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है
लेकिन डिमांड तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि द रीजन वी नो दैट इज द पॉपुलेशन। तो क्या होगा, इन आयरिश बिजनेसमैन को ये डेयरी प्रोडक्ट की प्राइस भी बहुत बढ़िया मिलेगी। एंड चाइना इज नोन फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। लेकिन इतना मास प्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि चीप लेबर अवेलेबल है, लेकिन अगर वो सेल करने के लिए जगह नहीं मिली तो एक दिन ऐसा करना पड़ेगा कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी, इतना प्रोडक्शन ऑलरेडी हमने कर चुका है। तो चाइना विल सेल ऑल द गैजेट्स टू द आयरिश पीपल at a very lower cost. So definitely Irish people can have a good amount of profit on their cheese and butter. Simultaneously, China can capture their electronic gadget market by supplying at very low rate, and people can also have access to all electronic gadgets at a very cheaper rate. So again, there is a win-win situation for China. So this is a real-time example of trade agreement by comparing the comparative advantage of the both countries. और अगर हमने देखा तो आज की सबसे ज़्यादा ट्रेड डील्स ये कंपैरेटिव एडवांटेज देख के ही होती है, कौन सी भी हो। Now, any questions from your end? Because I don't want to make you more confused by starting immediately the relative compare advantage. इसलिए मैं आज रुक रही हूँ by teaching only the comparative advantage between the two countries. तो आपके ओर से कुछ question है? Ma'am, can I ask a question? Yeah, sure. Ma'am, as this is an agreement, it is enforced by the law, right? And if any country misuse this agreement or something happens, so who is responsible? Means how we can sue them? See, basically, when you enter into the agreement, why we enter into the agreement? Because both countries accept the norms, right? But as you said, if some countries start misusing the powers, the other countries have every right either to uh, फर्स्ट टू इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सच प्रोडक्ट। मतलब अगर हमने कहा कि हमारा और किसी और कंट्री का एग्रीमेंट है एंड दे हैव टोल्ड अस कि नहीं हम बनाना प्रोडक्ट समथिंग लाइक दैट, दे विल सेल इट एट 10 रुपीज ओनली। और हमें पता है कि जब 10 रुपीज का आएगा तो मेरे डोमेस्टिक सप्लायर भी, डोमेस्टिक बिजनेसमैन को भी अच्छा है। लेकिन इफ दे हैव स्टार्टेड डंपिंग इट बाय 1 रुपीज, जिसकी वजह से मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी खत्म हो रही है, तो आई कैन डायरेक्टली चार्ज 9 रुपीज एज एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड अल्टीमेटली 10 रुपए को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर वो नहीं माने तो यू कैन कैंसल द एग्रीमेंट। फिर भी नहीं माने, यू कैन बैन देयर प्रोडक्ट्स, यू कैन बैन दैट कंट्री। फिर भी नहीं माने तो यू कैन गो टू द WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी नहीं माने तो यू कैन गो टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ही आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं। डायरेक्टली यू कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि आगे वाले बंदे को भी कुछ टाइम देना जरूरी रहता है। But if the country really wants to make the arrangements with you for a longer period of time, बहुत कम बार होता है कि ऐसा मतलब बवाल खड़ा होता है, बहुत कम बार। क्योंकि Ma'am, just like if you recent look case at happened the with number, China, they are saying that they will अभी जो चाइना के साथ हम लोगों ने एप्स जी बैन की है, वो भी एक जी तरीके का मतलब एग्रीमेंट ही होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो इन दिस केस आल्सो दे कैन No, टेक एनी actually, एक्शन। under the WTO, there is a list of the products where we have accepted the free trade of the product, जिसमें सॉफ्टवेयर भी है, एप्स भी है। इसलिए जब तक गवर्नमेंट में ये ऐप का बैन का GR नहीं निकाला था, तब तक हम लोग सब यूज कर रहे थे। बट जब से गवर्नमेंट हैज एवरी राइट कि by quoting this is a threat to the security, they can do that. They have their special powers for it. It is a part of WTO. अगला जो हमारा चैप्टर है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने जो
7 countries ने साइन किया for promoting the free trade among the globe. इसमें वो सारे लिस्ट आए थे, लेकिन every country has a right to stop the transaction also. मतलब दे कैन नॉट से कि आपने WTO का सिग्नेचर किया है, आपको लेना ही पड़ेगा. WTO is just promoting deal, लेकिन ultimately every country has right whether to accept it or not. Yes, anyone else? Yeah, Yes, ma'am. Good evening, ma'am. I have a question, ma'am. yeah. Ma'am, now you just said that if China, they are sending the electronic products to जी. Israel, right? And Israel is Island, sending the Dell island. product. Sorry, हाँ, Ireland. They are हाँ, sending the Dell products to China. What जी. does if Israel? No, what is that? Island. Ireland. If Ireland import the products, then and they send Island. it to India. They send it to India or they send it to some other country. Interport the products, China product. Is that legal? Yeah, why not? That is Okay, called because trading. That is called trading. एक okay, जगह because जहाँ से सस्ते में मिल रहा है वहां से लो और किसी और देश को बेच दो, then you are the fool person that you are not getting the original the supply. okay, because But the actual import product duty. is of China and In, the Israel is sending it. yeah, that is fine. अगर उनको सब ड्यूटीज पे करके भी उनको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो नो क्वेश्चन. होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से लेता है, रिटेलर को बेचता है. रिटेलर क्या करता है? वही तो करता है. क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट गो टू द डायरेक्टली पॉइंट ऑफ ओरिजिन. इसीलिए जब हम फैक्ट्री शॉप्स में जाते हैं तब हमें बहुत सस्ता लगता है. हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन था मैम. जी, मैम अभी पूछिए. जैसे पूछा अभी इसने अभी मतलब ये है कि अभी इसने इंपोर्ट किया आयरलैंड ने और हाँ. आयरलैंड मान लो इंडिया को बेच रहा है तो आयरलैंड ने जी, कंपनी ड्यूटीज और टैक्स राइट. अभी इंडिया को बेच रहा है जी, तो इंडिया वाले को इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स पे करना पड़े तो उस केस में मेरे को नहीं जी, लगता इतना बिल्कुल. बेनिफिशियल होगा. और दैट इज व्हाट आई दूसरा एम सेइंग कि इफ अगर वो ड्यूटीज वगैरह जाकर भी सी इट डिपेंड्स. अभी आपने हालांकि सिचुएशन देखी कि पीपी किट्स कितने महंगे. तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि अगर आपको वो सब ड्यूटी ब्यूटी पे करके भी प्रॉफिट हो रहा है तो यू कैन गो फॉर इट. इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द सिचुएशन. हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल. आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. No Ma'am, problem. but That's it. That's ma'am. China can't take an action over this because they are products. नो, What can आपको ना बेटा मैं एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाती हूँ विच हैज हैपेंड इन माय फैमिली. एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी के फ्रेंड यूएसए में गए एंड he bought something like thermometer for one of my family friend, right? मतलब अमेरिका में जाके उन्होंने थर्मोमीटर लाया इंडिया में एंड व्हेन एवरीवन ओपन द बॉक्स वहां पे लिखा था मेड इन इंडिया. क्या हुआ इसका मतलब? इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ वो थर्मामीटर, ट्रैवल करके यूएसए में गया, इंडिया में उसने ड्यूटी पे की, यूएसए में ड्यूटी पे की और फिर से वो ट्रैवल करके इंडिया में आया एज अ गिफ्ट. हालांकि हमें नहीं देना पड़ा क्योंकि वो गिफ्ट था उसके पैसे, लेकिन किसी ना किसी ने वो दोनों ड्यूटीज पे किए ना. तो क्या इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा अरे ये हमने ही बेचा था फिर से इंडिया में क्यों ला रहे हो? इफ यू हैव पेड द ड्यूटीज नो वन विल स्टॉप यू. बात समझ में आ गई आपको? Yes, ma'am. But today I'm very happy that you have started discussing a lot of things, and that's what required in a class itself. Yes, anyone else? We have last, I guess, 2 to 3 minutes.
Yeah. Hello. Yes, I am listening to you, beta. Actually, your voice is Yes, not I audible. just wanted to say that. It's audible right now? Hello? Hello. Hello, beta, your voice is not audible. Hello. Hello. I'm not getting. Hello. Yeah. So actually, I was saying that means it's a kind of a re-exporting, right, ma'am? Like if you want to import Right. from China, we directly don't import as on few goods the duty is higher. So we basically import it in Dubai, Sri Lanka, Malaysia, or Bangladesh, nearby countries, and from there we import to China to save the import duty. As few of the or many of the products are having duties right from 50% to 100%. Right. Right. Right? See, actually, whatever you are talking about is the jewelry done by the traders. Yeah. Okay, and that is your intellectual, how you use it. And if जैसे मैंने एक लाइन में कहा था, if you are following all the laws, if you are paying all the duties, आपको कोई पूछेगा नहीं. ओके एक और मैं कहानी सुनाती हूँ कि प्रैक्टिकली लोग कैसे करते हैं. एक बार क्या हुआ था कि इंडिया में गाल्वेनाइज जो मेटल है उसका बहुत शॉर्टेज हुआ था. एंड वन सिंधी ट्रेडर वाज सो इंटेलिजेंट, उसको कहीं से पता चला कि साउथ अफ्रीका के किसी कंट्री में उस गैल्वेनाइज टिन में पामोलिव ऑयल बेचते हैं. मतलब उस वो टिन गैल्वेनाइज का है, उसमें पामोलिव ऑयल रहता है और वो बेचते. तो उसने क्या किया, उसने बहुत बड़े पैमाने पर वो पामोलिव ऑयल इंपोर्ट किया इंडिया में. ओके और आने के बाद वो पामोलिव ऑयल फ्री में बेच दिया, फ्री में. ओके प्लास्टिक कंटेनर में डाल डाल के. और जो कुछ भी गैल्वेनाइज था वो बहुत हाई प्राइस को उसने स्क्रैप में बेच दिया. क्यों ऐसा क्यों किया उसने? पामोलिव ऑयल के टिन पर इंपोर्ट ड्यूटी पे की, फिर भी स्कैरसिटी की वजह से उसको उस मेटल का स्क्रैप का बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिला. So this all happened. It always depends how you react to the situation. मैंने अभी परसों ब्लॉग लिखा था आईटी सेक्टर पर. सारे सेक्टर्स डूब गए अभी 4-5 महीनों में, बट आईटी सेक्टर इज ब्लूमिंग, एफएमसीजी सेक्टर इज ब्लूमिंग. क्यों? बिकॉज दे आर यूजिंग देयर इंटेल. बात समझ में आ गई आपको? हर जगह कंपैरेटिव एडवांटेज होगा ही होगा. इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर यूटिलाइजिंग, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर गेटिंग द फ्रूटफुल रिजल्ट्स फ्रॉम इट. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? हेलो. Yes, ma'am. Okay.